फूड टेक्नोलॉजी स्टार्ट्स एट आवर होम एवरी सिंगल डे। जब हमारी मम्मी रात में दही को खट्टा लगाती है Hmm. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग इट टर्न्स इनटू कर्ड, Yeah. our mothers are working as a microbiologist there because they know Yeah. exactly what kind of bacterial culture will multiply at what temperature, because they'll always take the temperature also of that Yeah. milk, Yeah. right? वो ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए. So Yeah. that's the crux of food technology, the science Okay. behind food. I have worked with about 1500 or 2000 odd clients in Whoa, those 1500 5 is 6 like a years. very big number. Yeah. Yeah. एंड दीज आर द पीपल जिनसे मैं, मतलब मैं ऑन अ डेली बेसिस मैं एटलीस्ट 30-40 लोगों से मिल रही हूँ। Yes. कम से Hmm. कम 8-10 लोगों के साथ में एक डीप कन्वर्सेशन हो रही है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सी आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन अ मिशन दैट एनीबॉडी हू कैन अफोर्ड फूड शुड Yeah. नॉट गो टू बेड हंग्री। खाने से डर सब लोग रहे हैं, लेकिन Huh. हेल्दी तब भी कोई नहीं हो रहा। तो अगर आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी है, घी खाओगे, इट विल हेल्प। Okay. Noted. स्किन हेल्थ बेटर करनी है, घी खाओगे, इट विल हेल्प। Okay. ओके, या 100%. अब तो बहुत ज़्यादा मेरे पास there is like a very strong case for ghee. Yeah. Welcome to Being Curious with Yash. Welcome to Being Curious with Yash, audience and our dear guest. Today we have a very famous, renowned dietitian, Manisha. She has like more than 100K followers and like makes very good videos on YouTube and Instagram. I to follow her regularly, like from some months. So welcome. थैंक यू सो मच यश फॉर हैविंग मी हियर। Yeah. So today, like we'll be discussing about her life journey and how she cracked the growth of Instagram and all, and ultimately we'll get some very tips and tricks of living a healthy life, in which she has done very good work. So let's start. श्योर, यस। Yeah. So let's start with let's go back to the basics. Like let's we can talk about your childhood. Ki, like where did you grow up? Can you just share about your parents and like how did you get the interest in fitness and health in general? So I am born and raised in Delhi, Okay. a pure Delhiite, but I'm from a Punjabi family. So, and this is something that I always introduce myself by. Uh, I come from a Punjabi family, right? And Punjabis are known for only two things. One is Yeah. food, eating. Yeah. Second is talking. And now I have made this my profession also officially. Yeah. So now Yeah. I talk about food as my Yeah. profession. Yeah. Yeah. But they are not very famous about talking about healthy food. Healthy food, yes. Yes, Yeah. that's amusing. That's the reason why I took it as a profession. I was just so much in love with food that I wanted to know how the food works in our inside of our body, how our body functions, how our body processes food, what kind of things happen to the food when it enters our body. So yeah, I was a little obsessed with that, and that's why I Okay. went on to study science, human body, and food technology. And yeah, that's how I became a dietitian as well. Yeah. Okay, nice. So where did you study all these things, food technology and about food? So after my class 12th, which was from BCMB, a language that I think a lot of students understand, I Okay, had physics, chemistry, maths, biology in my class 11th and 12th. Then okay, I did food technology from Shahid Rajguru College of Applied Sciences for Women from Delhi University. And after that, I did a post graduation in packaging technology. And then while I was doing my internship in Hindustan Unilever as a packaging technologist, I realized that that was not the thing for me, and it was like a little bit of diversification from food. And I just wanted to study more on food, and that's the reason why I came back from Bangalore and started studying for my second post graduation, which was my master's in dietetics. okay. Yeah. So like, I have a very curious I have a very curious question. Ki what do they actually teach in food technology? Like,
what is actually food technology. Because food is so what we see at our home, ki, you just mix everything and Yeah. craft somehow and you make food. But so what do they actually teach in subjects like food technology? I am actually glad that you're being curious about it and, justifying your name also. Yeah. But back when I was studying food technology, back in 2007 to 10, I I used to get this a lot. होम साइंस कर रहे हो, कुकिंग सीख रहे हो, क्या हाँ. बनाना सीखा? I used to get that a lot, but Yeah. that's not what food technology is about. But yes, food technology starts at our home. Every single day जब हमारी मम्मी रात में दही को खट्टा लगाती है, Hmm. and the next morning it turns into curd. Yeah. Our mothers are working as a microbiologist there because they know Yeah. exactly what kind of bacterial culture will multiply at what temperature, because they'll always take the temperature also of that Yeah. milk, Yeah. right? वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए. So Yeah. that's the crux of food technology. The science Okay. behind food Okay. is the food Okay. technology. So हम Okay. ये अपने घर पे भी होते हुए देखते हैं. Yeah. And on the industrial level also, we see so many processed foods today. So yeah, all the things that Okay. go right from the farm to when the food comes to your plate, everything in between is food technology. Okay. So like how long is the course? Like 3 years, 4 years? It's a 3-year degree. Okay. So like do they actually take you to work in a restaurant or as a, I don't know, chef or somebody, I don't No. know, like So something. as I said, Okay. no, Huh. no. As I said, it's not a cooking course. Okay. There's a lot of technology involved there. हमारे Okay. second year में, third year में we go for industrial trainings, and Okay. I did my second year industrial training in a flavor manufacturing company. Okay. So they make fragrances, food fragrances, and food colors. Okay. Okay, and the technology behind that, how Okay. exactly those colors are made, I have Okay. studied that So in the second year of the technology. got it. Yeah. So I think it is about mainly it people who would be doing food technology would ultimately go on to make like packaged foods and uh, I Not don't know, always, processed not foods. always. Food Okay. technologists can go into microbiology field also. So my third year food technology training was in a microbiology lab, in a food testing laboratory. So Okay. shelf life of food, प्रोसेसिंग होने के बाद में उसमें कितना कैल्शियम, कितना मैग्नीशियम, कितना जिंक बचा है, उसका टेस्टिंग, हाँ, हाँ. right? What kind of bacterial cultures are there? How long will a food survive on the shelf? So Okay. those things also are studied by food technologists. So you can go into microbiology, you can go into agriculture, you can go into research. A lot of my classmates are working with Indian Agricultural Research Institute Okay. as scientists. So yeah. Okay. Okay. Nice. Nice. Very cool degree actually. I did not Yeah. know. Actually did not know these kind of things actually exist. Abhi, like recently, I read about there is a book by Chris Ashok, if you know. It's like very he's a very famous author and like he also Yeah. makes YouTube videos. He matlab that after reading that book, I realized ki, okay, there is like a proper science behind everything that goes into food and all. That was like an enlightenment moment for me in terms of food. He's also a food technologist, I guess. No, he's not a food technologist. He's actually an engineer, and Yeah. so he's a computer scientist and an engineer. But he's like very passionate about food. So he So researched on his food tech own. में food tech में engineering भी होती है. Okay, Yeah. no, but he's a software engineer. Okay. Okay. He Fine. tells I'm a software engineer. Hmm. I actually am. I have done coding for a lot of years, and I'm like proper into software. But I love food, and from Hmm. very early childhood, I was very obsessed by food. So then, and he since he's a engineer, so he's like I want to break food into a lot of different parts and see how things actually move. So Yeah. ultimately, he become like a food technologist. Yeah. Yeah, yeah. So moving on from the food technology, so like your
So moving on from your food technology thing, I want to know about your masters and how did you like uh, came about studying or being nutrition. like a dietitian, because it's Yeah, not very common. Like lot, like people want to become engineers and doctors and yeah. all. He wants to become a So dietitian. I think like a lot of kids in 12th class, I was also a little clueless कि क्या करना है. हाँ, And हाँ, since the very childhood, मुझे एक चीज clear थी, I wanted to study science. There was no okay, other option apart from that. There was okay, nobody in my entire khandan who was studying science, and I was just inclined towards it somehow. And okay, after completing my PCMB, I scored well. Uh, हाँ, एंड उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। एंड हाँ, हर खानदान में एक अंकल होते हैं ना जो समझदार होते हैं, जिनके पास आप 12th करने के बाद जाते हो कि अंकल क्या करें आगे? हाँ, हाँ, एंड वो हमेशा सो गलत ही डायरेक्शन देते समहाउ इन माय केस दैट वाज़ नॉट द केस। ओके, उन्होंने एकदम सही एडवाइस किया मुझे ओके, फॉर सम डिफरेंट रीजंस। हाँ, जो मेरे मासी के हस्बैंड, मैंने उनसे पूछा था कि अंकल क्या करना है? तो उन्होंने बोला था कि फूड टेक्नोलॉजी। हमारे टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉमन फॉर्म आया करता था ओके, कि जितने भी कोर्सेज़ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन सब के सब एक फॉर्म पे होते थे। आपको जो-जो भी जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो, आप उसको ओएमआर शीट जैसा आप उसको मार्क कर दो, एंड देन व्हाटएवर यू क्वालिफाई फॉर यू कैन गो एंड स्टडी दैट। सो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ रही थी। एंड फिर फिजिक्स ऑनर्स में मेरा हो गया था, मैथ्स ऑनर्स में हो गया था, केमिस्ट्री ऑनर्स में हो गया था, लाइफ साइंसेस, और मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या-क्या भरा था। एंड वन ऑफ द सब्जेक्ट्स वाज़ फूड टेक्नोलॉजी, एंड आई आस्क्ड हिम कि अंकल क्या करना है आगे? इन सब में हो गया मेरा। एंड ही सेड फूड टेक्नोलॉजी अच्छा कोर्स है, कर लो। मेरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत जान-पहचान है। मेरा ललित वगैरह में बहुत अच्छी जान-पहचान है, दिल्ली से ही है वो भी। तो आप क्वालिटी लैब में जा सकते हो फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद। तो आई थॉट ठीक है चलो कर लेते हैं। साइंस पढ़ने को मिल रहा है, बस उतना बहुत है। एंड once I entered that college, I think it was the most game-changing thing in my life because I fell in love with food more. I fell in love with human body more. या, And our teachers were brilliant. और उसके बाद ये चीज़ समझ में आई कि खाली क्वालिटी लैब में मेरा काम नहीं है, मैं और भी बहुत चीज़ें कर सकती हूँ। देन आफ्टर माय ग्रेजुएशन वाज़ ओवर, एक एलुमनाई मीट में मेरी एक एलुमनाई ने मुझे बोला कि यू हैव अ वेरी एनालिटिकल माइंड, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में चले जाओ, अच्छा है। ठीक है, या, आई वेंट देयर। दैट एक्सपीरियंस गॉट अ लिटिल आई ओपनिंग आई वुड से, क्योंकि पापा के बहुत पैसे लगवा दिए थे मैंने उस कोर्स में। और जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए हम गए, तो पहले ही बैच में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था विद द बेस्ट कंपनी दैट वाज़ देयर ऑन कैंपस। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर या, बैंगलोर में मैं गई थी ट्रेनिंग के लिए। एंड मेरी ट्रेनिंग की मेंटर जो है, शी वाज़ आल्सो फ्रॉम माय ग्रेजुएशन वाला कॉलेज की एलुमनाई। ओके, एंड शी रियलाइज़ कि मेरे को पैकेजिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। एंड वी ओके, हैड अ टॉक। शी सेड कि क्या मिस कर रहे हो? क्या बात है? हाँ, और हम अगर हायर करेंगे तुम्हें, तो तुम यहाँ पे बैंगलोर में रुकोगे क्या? आई सेड आई एम दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू। मैं हुँ, फूड का साइंस और ह्यूमन बॉडी का साइंस बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि हाँ, पैकेजिंग का साइंस इज़ वेरी डिफरेंट, यू नो। हाँ, ऑब्वियसली, फूड टेक्नोलॉजी का एक बहुत छोटा-सा एलिमेंट है फूड पैकेजिंग, और मैं उसमें अपना स्पेशलाइज़ेशन कर रही थी उस टाइम पे। एंड आई हाँ, रियलाइज़्ड दैट आई लाइक द साइंस पार्ट मोर। हाँ, आई लाइक द अलाइव फूड वाला पार्ट मोर। हाँ, एंड शी सेड कि वापस जाके एमएससी स्टार्ट करो, जब यही ओके, करना है तो। एंड honestly I did my MSc because I wanted to become a teacher. ओके, So I wanted to become a lecturer. I thought मास्टर्स करके यूपी एग्जाम दूँगी, पीएचडी करूँगी, साथ-साथ पढ़ाऊँगी, दैट वाज़ माय प्लान। बट देन ड्यूरिंग माय मास्टर्स हमारी हॉस्पिटल में भी ट्रेनिंग होती है। तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग के टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग आउट डाइट प्लान्स एंड पीपल स्टार्टेड गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, दैट वाज़ माय आहा मोमेंट कि यार this is also a way where I can teach people. हाँ, And since then, I am teaching people in a different way. yeah, definitely, definitely, you are very good at job, and I And don't know, I think we should all thank your mentor. She actually guided you in a very, like, in a very right way. You said ki you are starting to become and you are getting interested in becoming a dietitian, and you have also given a lot of plans
to people, and it is helping out. So now tell me what all the next step you did to become not just a dietitian, a certified dietitian, actually becoming a content creator. And because not a lot of people actually go on to become a content creator in this space, like people creating content in terms of comedy and all whatnot of things, but this is like a very niche space. And so like just tell me about that journey. Very uh, interesting. जो मेरे को खाना और खाने की बात करने के अलावा कुछ नहीं आता लाइफ में, ठीक है? Okay. So after I did my masters, I was anyway, in fact, even after my graduation, I was qualified to give out diet plans because food technology में nutrition भी एक subject होता है. Okay. But after my masters, I was completely qualified to do it, right? On a clinical level also. But वहाँ पे एक्चुअली वो मन नहीं भरा मेरा आज तक भी मन नहीं भरा है पढ़ के तो. So after I did my after I did my hospital training, uh, I started working with a gym और 2 घंटे के लिए जाती थी हफ्ते में कुछ दिन. It was a part time thing because I had just come back from Bangalore and already मैंने अपने पापा के बहुत सारे पैसे लगवा दिए थे in my first post Yeah, yeah. graduation. तो पापा को बिना बताए मैंने मास्टर्स शुरू कर दिया था on the side. And I was Okay. working as a packaging engineer in a company. Okay. Yeah. So while I was, working as a packaging manager, I was also doing my masters, and simultaneously ये दोनों चीजें चल रही थी. And once I finished my masters, पूरा 2 साल पापा को बताया ही नहीं था. Really? जब हॉस्पिटल ट्रेनिंग का टाइम आया था, तब हाँ. मैंने पापा को बताया था कि Okay. मास्टर्स कर रही थी, अब हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए जाना है. काइंड. Amazing. So yeah. So like No, what sorry. kind of training Sorry. they had you? During my practicals मैंने पापा को बताया था. Okay. फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स. या पूरे 2 साल Okay. नहीं, फर्स्ट ईयर के बाद मैंने बता दिया था. Okay. So yeah. Uh, and then I started working with the gym as a part-time dietitian. And back in, like I'm talking back in 2012 or 13, उस टाइम पर जिम में ज़्यादा लड़कियाँ होती नहीं थी. And it was like a proper, जिसको हम लोहे वाला जिम बोलते हैं. It was that kind of a gym जहाँ पे buff लड़के बहुत ज़्यादा are working out, sweating it out, and yelling and ego lifting, that kind of a place. हाँ. Started working with them, and I was literally 47 kgs at that time, and I'm like really short. I'm 5'2", right? Okay. So I had a lot of glares and eyes on me कि अरे पता नहीं बच्ची कहाँ से आ गई है, kind. But then I started, giving them advice on how they need to divide their carbs, because ये सारे bodybuilders, they were majorly eating just protein. And एक बार किसी एक ने बस मजे के लिए आई थिंक मेरे से बात करी होगी, and I told him कि थोड़ा सा carbs बढ़ा दो और post workout में carbs हाँ, बढ़ा हाँ, दो. हाँ. And then within like 2 weeks, he gained about half an inch in his bicep, and Okay. he made like a huge deal about it in the entire gym. अरे ये छोटी सी लड़की, इसको तुम्हें पता है इससे मैं आधा इंच बाइसेप बढ़वा दिया, ये वो तो हफ्ते में. And then everybody started taking diet plans from me. At that time I was like charging 200 rupees per diet plan. Okay. And Nice. yeah. And then in 2015 I resigned from my packaging job and completely full time shifted to become a dietitian. Started with the skin clinic, worked there for 6 months, and there was a lot of crap about mono diets and don't have carbs and detox diets happening there. वो जगह was not for me. 6 months में मैंने छोड़ दिया, and then I started working at a place which turned out to be my dream job. So I worked with Fitness First for about 6 years. 2015 से लेकर 2011 2021 तक I was working with Fitness First. And during that time I always wanted to become a content creator. मेरा YouTube का पहला वीडियो मैंने 2015 में डाला था. Oh. When I started working as a full-time dietitian, that was the time when I put out my first YouTube video.
लेकिन वो फर्स्ट यूट्यूब वीडियो बनाने में मैं इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो गई थी क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, मुझे सॉफ्टवेयर्स का कोई नॉलेज नहीं था। पीपीटी बना के, स्क्रीन रिकॉर्ड करके, फिर उसके बाद वॉइस ओवर करके आई डोंट इवन रिमेंबर कैसे, बट इट टूक मी अबाउट 2 टू 3 मंथ्स टू क्रिएट दैट वन वीडियो। इट इज़ स्टिल ऑन Oh, माय यूट्यूब पेज, द फर्स्ट yeah. वीडियो दैट इज़ देयर अगर किसी को जाके देखना हो And तो। like I would say कि it is really अब तो काफी easy हो गया है. Lot of tech is very sorted and all. पहले तो I don't know हर चीज के लिए you have to like इतना दिमाग लगाना पड़ता था. Yeah, so पड़ता and I'm होगा. really proud. मैं तो अभी 6 महीने से बना रहा हूँ. I'm really proud of what I did in those 3 months because भले ही वो वीडियो कितना भी बेकार लगे, but I हाँ. still spoke facts in that. However, उस एक वीडियो को बनाने में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि फिर मैंने 5 साल तक कोई वीडियो नहीं बनाया अच्छा. यूट्यूब पे। Then during pandemic, we were kind of laid off from the job. Okay. 70% पे कट हो गया था हमारा बिकॉज़ सारे जिम्स बंद हो रहे थे uh, हाँ. and that was the time when I properly started doing content. Okay. Okay. Nice. Nice. Like गजब. Like so जब much. जब बेसिकली जब जब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, जब हाँ. जब मेरे पास प्रोक्रेस्टिनेशन का ऑप्शन नहीं बचा था, जब मेरे पास वो सेफ गेम खेलने का ऑप्शन नहीं बचा था, हाँ. दैट वाज़ व्हेन आई स्टार्टेड विद माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी एंड आई वुड से कोई भी अगर ऐसा है, जो मेरी तरह सोच रहा है कि अरे यार, अभी पहले ये हो जाए फिर करेंगे, फिर ये हो जाए फिर करेंगे, डोंट वेट बिकॉज़ परफेक्ट टाइम तो कभी नहीं आएगा। इनफैक्ट पैंडेमिक True. में भी जो मैंने पहली वीडियो अपनी डाली थी, वो मैं आज देखती हूँ एंड आई फील लाइक कितनी गंदी वीडियो है। Yeah. True. बट वो 100%. गंदी वीडियो बनाना ज़रूरी होता है। Yeah, 100%. अभी yesterday I was actually watching a video उसमें the biggest tech content creator है ना MKBHD मार्कस ब्राउनली. हाँ. या he मतलब उसमें आया था कि when he made his 100th video he had only 76 subscribers. आई हैव सीन दैट वीडियो। Yeah, and यस। I was like surprised कि like people so much measure how much मैंने 5 वीडियो बना लिया बट मेरे तो सब्सक्राइबर बढ़े ही नहीं ये नो वो. And I'm like oh my god, like this is so eye एंड opening. इनफैक्ट मेरा यूट्यूब स्टिल ग्रो हो रहा है। अभी आई थिंक आई एम एट माय 250-ish वीडियोज़ एंड आई जस्ट हैव लाइक 3.3K subscribers on YouTube. Yeah, YouTube is hard job, man. YouTube is yeah, YouTube is tough. It takes a lot of effort. yeah, एंड बीच-बीच में आप मोटिवेशन लूज़ करोगे, बीच-बीच में आपकी एनर्जी चली जाएगी, बीच-बीच में आप थकोगे, ठीक है, रुक जाओ, बट डोंट पुट लाइक यू कैन पुट अ पॉज़ देयर, यू कैन पुट अ कॉमा देयर, बट डोंट पुट अ फुल स्टॉप। yeah, true. It's a long game. इट्स अ वेरी, वेरी लॉन्ग गेम, या। Yeah, yeah. And so you started creating content on Instagram. So did you start with shorts that you are making as of now, or were you writing on Instagram? Like, what kind of content were you you started with, and just tell about your Instagram. पैंडेमिक से पहले मैं ऑन एंड ऑफ ऐसे इंस्टाग्राम कर रही थी और कुछ नॉलेज नहीं बाँट रही थी मैं। ऐसे ही थोड़ा-सा एक वर्कआउट का क्लिप डाल दिया, कुछ योगा स्ट्रेच कर रही हूँ उसका लिंक, उसका थोड़ा-सा छोटा-सा क्लिप डाल दिया। दैट यूज्ड टू बी द केस। अ, और 2020 से पहले तक तो रील्स थे भी नहीं। आई थिंक हाँ, रील्स तो स्टार्ट भी हुए थे 2020 के एंड में। हाँ, उससे पहले तक इट वाज़ जस्ट अबाउट अ पिक्चर एंड देन सम कैप्शन। आई वाज़ जस्ट yeah, डूइंग दैट। कैरोसेल्स बना रही थी। रील्स बहुत टाइम तक आई थिंक जो बहुत सारे लोगों ने किया भी है कि जब रील्स नए-नए आए थे, कैमरा के आगे नाचेगा कौन? मुझे नहीं करना ये। yeah, आई डिड दैट। बट yeah. देन टिकटॉक यू से आया नो था एक्चुअली. आई थिंक वो टिकटॉक का कल्चर, क्योंकि टिकटॉक को देख के इंस्टाग्राम ने रील स्टार्ट किया था, तो एवरीवन वाज लाइक दिस इज सो बैड एंड ये तो काफी एग्ज़ैक्टली। क्रिंज है ये वो. और अब सब लोग उसी पे बना रहे हैं पूरा टाइम. लाइक पीपल आर सो गुड, मतलब प्रोफेशनल मूवीज बना दे रहे हैं 1 मिनट में. मैंने कहा भाई इस एग्ज़ैक्टली। आदमी का क्रिएटिविटी देखो भाई, मतलब 1 मिनट में बंदा क्या सोच ले जा रहा है भाई, मैं तो सोच ट्रू, ही ना पाऊँ. ट्रू। 10 सही साल बात है। लग तो फिर जाएंगे. बस वहीं से ही स्टार्ट हुआ था। तो रील्स वगैरह फिर मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाने शुरू किए थे। इनफैक्ट उससे पहले तक तो मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि यार हम बात करते हुए भी तो वीडियो डाल सकते हैं। हम लोग कुछ हाँ, कहते हुए भी तो वीडियो डाल सकते हैं। क्योंकि उससे हाँ. पहले तक सब लोग खाली एक लिप सिंकिंग वीडियोज़ बनाते थे, तो मैं भी वही कर रही थी। एंड हम्म, वो जितना भी कर लो उसमें मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। हम्म.
बट वंस आई स्टार्टेड फाइंडिंग माय ओन वॉइस, वंस आई फाउंड कि यार जो मुझे आता है उसको भी तो मैं बाइट साइज इंफॉर्मेशन में लोगों के लिए अवेलेबल कर सकती हूँ. हाँ. आई थिंक दैट हैपेंड अबाउट 2 years बैक, एंड व्हेन हाँ. दैट हैपेंड आई थिंक एवरीथिंग चेंज्ड. Yeah, true. So, like, when you started making Instagram content and all, so what was the feedback? Like, when you started making reels, like this reels of explainer videos that you make today. So, what was the feedback from the audience, so that you continued? And like, how do you? I want to also know about, how do you actually research about the topic? Okay, I want to make reels about this, because there are, hundreds and hundreds of topics you can actually make reels. And since you make a reel about that topic, and people watch it, they actually follow it, and it's actually quite relevant also, when I watch those reels. So want to know about that process of making content on Instagram. आई थिंक रिसर्च ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ता है, Okay. थैंकफुली. बिकॉज जो आप आज इंस्टाग्राम पे मुझे करते हुए देख रहे हो, Hmm. वो इंस्टाग्राम से पहले भी मैं 8-10 साल से कर रही थी. Okay. हाँ. राइट. आई स्टार्टेड वर्किंग विद क्लाइंट्स इन 2013. तो Okay. जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को हाँ. इन फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हाँ. जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आते हैं किसी को व्हेन दे हैव अ मेडिकल इशू लाइक पीसीओडी, डायबिटीज, हाइपोथायरायडिज्म, वो सारे के सारे मैंने अप क्लोज देखे हैं. सो इंस्टाग्राम पे आने से पहले भी आई थिंक जहां पर मैं काम भी कर रही थी, जो यू नो व्हाट आई कॉल माय ड्रीम जॉब, Yeah. वहां पर आई हैव वर्कड विद अबाउट 1500 और 2000 ऑड क्लाइंट्स इन Whoa, दोज 1500 5 is 6 like a years. very big number. या Yeah. एंड दीज आर द पीपल जिनसे मैं मतलब मैं ऑन अ डेली बेसिस मैं एटलीस्ट 30-40 लोगों से मिल रही हूँ. Yes. कम से Hmm. कम 8-10 लोगों के साथ में एक डीप कन्वर्सेशन हो रही है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हाँ. आ रहा है उनको फॉलो करने में. तो वो जो अप क्लोज प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं, Hmm. आई जस्ट रियलाइज कि जो सोशल मीडिया पे लोग स्क्रॉल कर रहे हैं उनके भी सारे सेम प्रॉब्लम्स हैं. हाँ. तो Okay. जब इतने सारे लोगों के को ऑलरेडी हेल्प कर चुकी हूँ और हर किसी का सिचुएशन पता है, जब कोई कॉलेज में जा रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, जब किसी के बच्चे हाँ. हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, जब कोई हाँ. जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आते होंगे, वो सब चीजें मैंने रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस में देखी ही है. और आज मैं हाँ. उसी के बारे में कंटेंट भी बना रही हूँ. हाँ. True. राइट. True. Yeah. सो अगर मुझे कभी आइडियाज निकालने भी होते हैं कि यार आज किस चीज पे बनाए, तो अभी भी जब मैं क्लाइंट से बात करती ही हूँ तो वही वाले सारे के सारे प्रॉब्लम्स उनको अब भी आ रहे हैं. राइट. हाँ. तो कई बार इनफैक्ट ऐसा होता है कि मैं अपने टेबल पे आई कीप लाइक अ फ्यू बुक्स एंड आई हैव अ डायरी, अ नोटबुक विद मी. और कभी-कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट से बात करते-करते कुछ ऐसा आ गया कि मनीषा ये वाला प्रॉब्लम आया था इस हफ्ते, एंड देन आई एम हाँ. सजेस्टिंग देम समथिंग, हाँ. एंड आई थिंक कि यार ये तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता होगा, तो मैं तुरंत उसको लिख लेती हूँ और फिर उस पे वीडियो बना हाँ. देती हूँ. ये अच्छा तरीका. Very nice. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपेंस. Hmm. राइट. कई बार अब इनफैक्ट अब तो कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे फॉलोअर्स मुझे कोई रील भेज देते हैं कि मनीषा आपका इसके ऊपर क्या व्यू है, हाँ. तो उसके ऊपर रिव्यू वीडियो बना देती हूँ. कभी Hmm. ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि यार ये भी चीज़ लोग पूछ रहे हैं, ये भी चीज़ लोग पूछ रहे हैं, उस पे वीडियो बना देती हूँ. कभी मैं क्वेश्चन स्टिकर डालती हूँ अपनी स्टोरी पे. तो जब मुझे मन करता है कि हाँ, मुझे इस चीज़ के ऊपर वीडियोज़ बनानी है, जैसे मैंने आज अपने स्टोरी पे डाला हुआ है, पीसीओडी जो है, वो ज़्यादातर जिन लड़कियों को होता है उनको ये बोला जाता है कि आप वेट लॉस करो, हाँ. बट पतली लड़कियों को भी पीसीओडी होता है. हाँ. तो वो इट्स होता नॉट तो आई थिंक हार्मोन्स के इम्बैलेंस है ना. एग्ज़ैक्टली. सो इट्स जितना नॉट मेरा जस्ट नॉलेज है मेरे obesity मेरे को डिपेंडेंट. या इट्स नॉट जस्ट ओबेसिटी डिपेंडेंट, राइट. हाँ. सो अभी मुझे एक थिन लड़कियों के लिए एक वीडियो बनाना है, एंड हाँ. आई जस्ट पुट अप द स्टोरी टुडे कि अगर कोई ऐसी लड़की है जो कन्वेंशनली शी इज़ थिन एंड शी स्टिल हैज़ पीसीओडी, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी. सो True. दैट्स हाउ आई Yeah. गेट माय आइडियाज़. Amazing. So we were राइट. discussing, what is the process of you making content, and like very good answer actually I got, and I think a lot of people would actually find it relevant. Ki, uh, just go and talk to people and make content about that, and people would just love that. So I want to know, like you are making content on Instagram and all.
So is it like your full-time job, or you are actually dietitian like on the go Hmm. also, like that? So what kind of equation is that? So, Because a lot of people this question comes because a lot of people who start making YouTube videos and Instagram reels and they want to make it like a full-time job. And I also asked this to a couple of content creators who has like a lot of big followers, so and they have like a very different view. Some people have said that, we have not left our daytime job. This hmm, is something that we do on the side. But hmm, some people say ki, no, we are actually pursuing it for some hmm. time as a like a full So, time job. with me, the case is that I have already worked in the industry for about a decade, Yeah, right? yeah, And then I, I think everybody gets to a point where they want to do something of their own, or they do not want to be in a job anymore, right? yeah. That happened with me in 2020, जब gyms बंद हुए थे और फिर उसके बाद gyms खुले, फिर उसके बाद सेकंड पैंडेमिक में, सेकंड लॉकडाउन में फिर से बंद हुए. That was the time when I realized that now I do not want to do a job anymore. Now I want to be self-employed. And April 2021, I left my job, and I registered my own company in September 2021. So Okay, now I run my own company called NutriBoss Private Limited, and we have majorly two services. Number okay, one is helping people with their health, and second is I run an academy for dietitians who are uh, coming up and who are just finishing their education and who want to practice on their own. okay, I help them through the NutriBoss Academy. So yeah, these are the two things okay. that my company does. Amazing, amazing. So I want to know, like, in terms of Instagram content creation and YouTube content creation, what is your dream, or what are your like goals that you actually see? Because I think for your business, Instagram and YouTube are like very big marketing thing. I think it would now become. So, Yeah. like, what goals and like future collaborations, if you want to do, give like a call to the universe. Okay, I want to collab with this person, or अविनाश would आपने be इतना amazing. बोल ही दिया है. Yeah, Giving a call to the universe. I yeah. want to work with Priyanka Chopra. Priyanka. Okay, Yeah, okay. I've Why? always I have always looked up to her. I think ये तो सारी ही ब्राउन लड़कियों के साथ में है, right? Okay, She is like the goat of brown girls, right? okay. And जितना मैं जानती हूँ उनके बारे Hmm. में, वो ये है Yeah. that she is also a foodie, you know. पंजाबी लोग होते ही हैं यार, हम पंजाबियों में होती है ये चीज़, ये खाने से दूर आप नहीं रख सकते हो, हाँ, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी एज़ वेल, राइट? अगर वो चीज़ दोनों हम ठीक से यूज़ कर लें, तो हमारा हेल्थ बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है. इनफैक्ट टॉकिंग अबाउट प्रियंका चोपड़ा, आई यूज्ड टू बी गेट वेरी पर्सनली वरीड अबाउट हर टिल अबाउट अ ईयर बैक. जब ऐसा होता था ना दैट आई यूज्ड टू सी हर वर्किंग, आई थिंक सभी को पता है द वे शी यूज्ड टू वर्क, इतना ट्रैवल और इतने सारे प्रोजेक्ट्स और सारा कुछ, और उसका आई थिंक इम्पैक्ट उनके ऊपर दिख रहा था. एंड यू नो हैविंग द काइंड ऑफ आई दैट आई हैव, मैं हर रोज देखती हूँ ऐसे लोगों को जिनके साथ में मेडिकल इश्यूज या लो एनर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं वो उनकी शक्ल में दिखने लग जाते हैं. एंड दैट I kind of had that hint that Priyanka is falling into that trap and she is getting a little burnt out. But then last year, uh, I saw a picture of her in an event. I think एक वो जो अंबानीज का एक जो कन्वेंशन सेंटर दे स्टार्टेड दैट पिक्चर, एंड उससे पहले तक आई वाज जस्ट प्रेइंग कि यार प्रियंका चोपड़ा को कुछ होना नहीं चाहिए, शी इज वर्किंग वेरी हार्ड, शी इज वर्किंग वेरी हार्ड. और वो पिक्चर देख के मुझे लगा नो, नाउ शी स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ. वो दिखना शुरू हो गया था, एंड नाउ आई सी स्टोरीज ऑफ हर वर्किंग आउट, प्लेइंग विद हर चाइल्ड. सो yeah, I would like her to take care of her always, and the kind of foodie that we Punjabis are, and at the same time the kind of fitness that we can carry. I think if me and her work together, her fitness is going to be like on the next level. Okay, great, great, great. I hope she listens to it. We got to know about your inspiration,
Priyanka Chopra. So I hope she listens to this podcast, I and wish. you get to work with her. I think Yeah. she is an icon for every one of us, truly, Yes, because absolutely. of how the name she has made of her in Hollywood. Like she's actually the first person to actually break into that industry. And in So fact, like it's not like I am not a fan of her since she shifted to Bollywood. I yeah, am her fan since Aetras. okay, आई yeah, पर्सनली तो मैं इतनी बड़ी नहीं थी जब ऐतराज आई थी, बट huh, इतनी छोटी भी नहीं थी। सो मेरे और प्रियंका चोपड़ा की एज में आई थिंक 3-4 साल का ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। okay, एंड आई रियली थॉट दैट दैट वाज़ अ वेरी, वेरी बोल्ड मूव। इट वाज़ अ वेरी ब्रेव मूव कि आप अपने करियर की yeah, इतनी जल्दी यू आर डूइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड आई yeah. लव्ड हर इन द मूवी। लाइक आई वॉच ऐतराज फॉर प्रियंका चोपड़ा। Mm-hmm. Got it. Yeah. So I want to know like about your future ambitions for your company and like in terms of Instagram and YouTube, what we can expect. Uh, See, I am actually working on a mission that anybody who can afford food should Yeah. not go to bed hungry. Okay. That's my mission. ठीक है? बिकॉज़ ऐसा Okay. हो सकता है कि वर्ल्ड हंगर मैं इरेडिकेट ना कर पाऊँ, Hmm. राइट? बट देयर आर सो मेनी पीपल हू कैन अफोर्ड फूड एंड स्टिल गो टू बेड हंग्री बिकॉज़ ऑफ डाइट कल्चर। Okay. आई वांट टू इरेडिकेट दैट। दैट्स Can माय you गोल। explain like about like can you explain like about diet culture and people going hungry? I didn't get the logic. ओके, आपने ये सुना है कि वेट लॉस करने के लिए डिनर हल्का करना चाहिए या डिनर नहीं करना चाहिए? 100%. मेरे घर में हर दिन बोलती मम्मी. Yeah. ये खत्म करना है हमको। Yeah. Acha. To have like a good diet culture so that यस। सो okay. जो लोग फूड अफोर्ड कर सकते हैं ना, आज की हाँ. डेट में वो लोग भी भूखे पेट सोते हैं बिकॉज़ उनको किसी ने ये बोल दिया है कि ख रात में खाना खाओगे तो मोटे हो जाओगे। हाँ. Okay. आई वांट टू इरेडिकेट दैट थॉट Okay. फ्रॉम पीपल्स माइंड Okay. एंड आई थिंक ये वो ही थॉट है जिसकी वजह से हमारी कंट्री और मैनकाइंड इन जनरल वी आर गेटिंग वीकर, राइट? हाँ. बिकॉज़ अगर आप हमारे दादाओं की जनरेशन पे जाओ या उनसे पहले वाली जनरेशन पे जाओ, Hmm. दे यूज्ड टू ईट अ लॉट एंड दे यूज्ड टू स्टिल बी हेल्थियर देन अस। राइट? व्हाई? Yeah. बिकॉज़ उनका फिजिकल एक्टिविटी बढ़िया था। आज हम अपनी हाँ. चेयर पे बैठते हैं और 12-14 घंटे अपनी चेयर पे ही बैठे रहते हैं, हाँ. राइट? उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ, एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट, हाँ. बट आई राइट? थिंक वो तो इसलिए हो रहा है ना बिकॉज अब तो मोस्ट वर्क कंप्यूटर बेस्ड हो गया है. सो हाँ, इसीलिए पहले तो मोस्ट वर्क लाइक फिजिकल होता था या फिर यू हैड टू ट्रैवल समवेयर. अब तो आप जूम कर सकते हो, करेक्ट। मीटिंग कर सकते हो. एंड यू नो दैट्स द थिंग, अगर आप सही चीज़ों की बात करोगे, अगर आप मूवमेंट की बात करोगे रादर देन ये मत खाओ, वो मत खाओ, हाँ. बहुत सारे एलिमेंट्स रिज़ॉल्व हो सकते हैं उससे। हाँ. नंबर 1 वर्क लाइफ बैलेंस बढ़ जाएगा। हाँ. Right. Number two, better work policies can be put into place so that people don't overwork themselves, people don't burn out themselves, start spending time with their families, go out for outdoor activities, uh, work on things that are really meaningful to them, have family time. और ये सारी की सारी चीजों से बहुत सारे मेडिकल इश्यूज को आप इरेडिकेट कर सकते हैं। मेंटल हाँ. हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है हम काफी हद तक खत्म कर पाए, ट्रू. राइट? बट हाँ. क्योंकि हम अवेयरनेस लोग की जरूरत तो है. हाँ, अभी हम लोग सिर्फ़ इसी बारे में बात करते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे नहीं खाना है, वैसे नहीं खाना है। हाँ. तो एक हाँ. अजीब-सा डर का माहौल है, हम्म. या. राइट? ट्रू. तो खाने से डर सब लोग रहे हैं, लेकिन हेल्दी हाँ. तब भी कोई नहीं हो रहा। Wow, this is like a very yeah one liner, but actually very good one liner. डर तो सब रहे लेकिन हेल्दी तो कोई हो नहीं रहा है. ये कैसे हेल्दी हो रहा कोई है? भी नहीं हो रहा है, हाँ. राइट? हमारा फिर भी डायबिटीज़ का परसेंटेज हाँ. बढ़ता जा रहा है, पीसीओडी का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, तो इस हम्म. डर का कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है।
Yeah. स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ, इतना ज्यादा पैसे का लालच मत करो। दीज आर द थिंग जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बोलते थे, वो चीजें हमें हाँ, आज फिर से अप्लाई करने की जरूरत है। true, true, true. So, moving on, like we'll have like a very in brief kind of session where we'll actually be debunking lot of myths. And if you want to shed more light, so you are very welcome to shed more light on the. So, Okay. first myth I want to talk about, ki, there is a myth in, I think I have heard it lot of where ki some people are to just born fit. कि यार सम पीपल हैव तो मतलब ये तो पैदा ही मतलब यो सिक्स पैक एब्स के साथ हुआ था. सो इज इट ट्रू और इज इट लाइक जस्ट अ मिथ? इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ. जेनेटिक्स जेनेटिक्स काफी हद तक हमारी बॉडी को गवर्न करते हैं, या. लेकिन आप अपना लाइफस्टाइल कैसे रख रहे हो, उसके ऊपर हाँ. डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी कैसे रहने वाली है। हाँ. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव माय ओन एग्जांपल, हाँ. माय फादर यूज्ड टू वर्क आउट इन एन अखाड़ा, और बहुत ओके. छोटी एज से, मेरे पैदा अच्छा. होने से बहुत साल पहले से ही वाज डूइंग इट, राइट? अच्छा. तो मैं वो जीन्स लेके पैदा हुई हूँ। हाँ. उसका बेनिफिट मुझे ये होता है कि जब मैं वर्कआउट करती हूँ, तो मेरी हाँ. वर्कआउट इंटेंसिटी जो है वो बढ़िया है। मुझे हाँ. जल्दी से अपनी बॉडी पे इफ़ेक्ट दिखता है। हाँ. लेकिन एट द सेम टाइम, इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट 2 एंड हाफ इयर्स व्हेन आई गॉट मैरिड, उसके बाद आई जस्ट लेट माय सेल्फ गो फॉर सम टाइम। आई वाज़ जस्ट हैविंग फन, घर की शादियाँ अटेंड कर रही थी, अ, कभी-कभी लेट भी सो रही थी। हाँ. वही शादियाँ एंड न्यू फैमिली, न्यू रिस्पांसिबिलिटीज़, न्यू वे ऑफ लिविंग लाइफ, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट आई डिड गेन वेट, या. राइट? ओके. तो जीन्स मुझे मेरे बुरे लाइफ़स्टाइल से बचा नहीं सकते, हाँ. राइट? जीन्स जो या. है दैट कैन बी अ चेरी ऑन द केक, ओके. दे कैन नॉट बी द एंटायर केक, 100%. Jeans can be राइट? the cherry on the cake, not the entire cake. Yeah, true, true. So next myth I want to address is कि metabolism, like good metabolism, is in genes. It can't be changed. इट Is कैन it बी like चेंज्ड। it's a myth? ओके, Okay, आई थिंक okay, इसको बंक करने के लिए ना, आई विल गिव हाँ, अनदर वन लाइनर। okay, जीन्स के ऊपर मेटाबॉलिज्म तो आप क्या ही चेंज करोगे, नहीं करोगे, आप हाँ, अपने लाइफ़स्टाइल से अपने जीन्स को भी चेंज कर सकते हो। okay. That's a TIL moment for me, यस, actually. ठीक है? Okay, Yes. So if you actually work out and keep your lifestyle good, you keep yourself strong, yeah, you can change your coding to the DNA level. So our okay, DNA is our code, right? Is the genetic 100%. code. Yeah, yeah, Yeah. We can change that. okay, okay, Okay. So amazing. अगर आपको अपनी फ्यूचर जनरेशंस को सुधारना है, हाँ, खुद को सुधार लो. खुद को सुधार लो, आगे वाले सुधर जाएंगे। Amazing, amazing. This is like a very TIL moment for me. Next myth I want to address ki vegetarian food has so much less protein and so much high carbs. So it's very very impossible. Not nobody says it's like ki impossible, but people say it's very hard to lose weight when you are eating veg food. So चलो, is it like a अ, myth or यश, ये भी मिथ है। okay? भगवान में मानते हो? हाँ, ठीक है। हाँ, जो भी इंसान वर्कआउट करता है, हाँ, जो भी इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग हाँ, बनाना चाहता है, हाँ. वेट लॉस करना चाहता है, या व्हाटएवर दे वांट टू चेंज समथिंग अबाउट देयर बॉडी, Hmm. तो स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास अपने एक पर्सनल भगवान है। हु इज दैट? हनुमान जी. इज ही अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन. काफी अच्छा. ओके, ये तो काफी क्रिप्टिक आंसर है. बट ओके, इफ आई ओके, मैं अगर हाँ, माइथोलॉजी के हिसाब से मैं भी बात करूं, हाँ, um, एक लायन हाँ, वर्सेस एक बुल, हाँ, वन ऑन वन, हाँ, वन इज अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, हाँ, वन इज अ हार्डकोर वेजिटेरियन, हु हैज मोर हाँ, स्ट्रेंथ? बुल. वन ऑन वन, यस। एक हाँ, बुल को मारने के लिए 5 शेर जाते हैं, हाँ, राइट? 100%. हाँ, Which one is the most strong land animal? Hippopotamus. हिप्पोपोटामस. Completely vegetarian. अच्छा, मुझे तो लगा नॉनवेज है.
No, actually? Oh, hippopotamus is the largest land animal, which is a vegetarian also, and the strongest okay, person. okay. सो 100% मिथ जो भी बोलेगा मैं कहूंगा पहले मेरा वीडियो देखो उसके बाद ही देन टॉक और सब्सक्राइब टू हर चैनल शी विल ब्रेक ऑल योर मिथ सो नेक्स्ट मिथ इज इट की इट एक्चुअली, तो अगर मैं इसमें थोड़ा-सा और ऐड कर देती हूँ, या जिन लोगों को प्लीज ऐसा लगता है कि हमारा वेजिटेरियन हो रहते हुए हमारा प्रोटीन कहाँ से आएगा? हाँ आपके वेजिटेरियन फूड में भी प्रोटीन है और आपकी बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोटीन कहाँ से आ रहा है। एज़ लॉन्ग हाँ एज़ यू आर हैविंग ऑल द अमीनो एसिड्स, इट डज़न्ट हाँ मैटर व्हाट योर सोर्स इज़, राइट? ओके नॉन-वेज को हम प्रोटीन एपिक इसलिए मानते हैं क्योंकि नॉन-वेज से ईज़िली आपको बहुत सारा प्रोटीन एक साथ मिल जाता है। हाँ बट दैट्स इट, राइट? हाउएवर, अगर आप रिसर्चेज़ उठा के देखोगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी कार्ब्स चाहिए होता है। अच्छा प्रोटीन अपना काम सी ठीक से कर सके, प्रोटीन हाँ आपकी मसल पे बिल्डिंग पे काम कर सके, उसके लिए भी उसे कार्ब्स चाहिए होता है, राइट? अच्छा तो भले ही आप कितना भी नॉन-वेज खा लो, आपको हाँ कार्ब्स उसके साथ भी खाना पड़ेगा टू मेक अप फॉर योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। ओके सो बैलेंस चाहिए बेसिकली एग्ज़ैक्टली, वो बैलेंस तो चाहिए और आपका प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, इट डज़ नॉट मैटर। हाँ ओके नेक्स्ट मिथ वो आई थिंक फॉर हर फॉर दिस मिथ ऑल आवर मॉम्स आर टू ब्लेम कि घी एंड फैट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ घी खाने से मोटे हो जाते हमारी दिस मम्मियों दिस इज की माय कोई गलती नहीं है इसमें। दिस इज माय पर्सनल नो, 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 ये हमारी मम्मियों की कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा पूरा का पूरा सोशल मीडिया और डाइट कल्चर की गलती है इसमें। अच्छा मतलब अगर आपकी मम्मी ये बोल रही हैं तो शी इज़ लाइक वन ऑफ अ काइंड, बिकॉज़ कितनी भी मम्मियाँ, दादियाँ सबको उठा लो, एवरीवन इज़ लाइक घी खाओ, घी खाओ, घी खाओ। अच्छा बट नो, घी इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू फैट एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप डब्बा भर के घी पी जाओ, हाँ यू नो। हाँ मिल्खा सिंह की एक पिक्चर आई थी, हाँ जिसमें वो हाँ पुशअप्स करता है और फिर एक कटोरा पूरा का पूरा बाल्टी भर के घी पी हाँ जाता है। हाँ येस, हम वो नहीं कर सकते आज की डेट में, पेट हाँ हमारा खराब हो जाएगा, राइट? हाँ उस समय पे हवा-पानी अलग था, घी की क्वालिटी अलग थी और मिल्खा हाँ सिंह का मसल मास बहुत अलग था, हाँ राइट? तो हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते हाँ और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको बहुत-बहुत सारा घी खाना चाहिए, हाँ बट घी इज़ नॉट बैड फॉर योर हेल्थ, दैट्स फॉर श्योर। ओके ओके सो ये घी नेक्स्ट आपके मिथ डाइजेशन को, ओके या ओके घी आपके डाइजेशन को ईज़ी करता है। घी आपके घी गिव्स यू गुड फैट। घी का जो फैट है, वो लिवर से भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करता है, सो फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए लिवर का बहुत रोल होता है। लेकिन घी हाँ के साथ में ऐसा नहीं है। जब आप घी खाते हो तो आपके लिवर को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, राइट? सो इट्स ईज़ियर ऑन द ओके स्टमक आल्सो, इट्स ईज़ियर ऑन द लिवर आल्सो। इट हेल्प्स यू डाइजेस्ट अ लॉट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई, के। तो अगर आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी है, घी खाओगे, इट विल हेल्प, ओके राइट? नोटेड स्किन हेल्थ बेटर करनी है, घी खाओगे, इट विल हेल्प। ओके ओके, या। 100% अब तो बहुत ज़्यादा मेरे पास देयर इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रांग केस फॉर घी Yeah, yeah. Next Mick, I want to know कि it is for older people कि in older people there is said when you are old it's very difficult to lose weight and I've seen like older people to have like so much stubborn fat and I see older people have like so much obese than younger people because younger people may with friends influence and with bad influence also people go to gym or they try to do something even though it's wrong but older people have just given up ki, okay we are so old we will not lose weight so Yeah. is it true that older people cannot lose weight No, it can be a little tough for them। और okay वेट लॉस का प्रोसेस ओल्ड लोगों के लिए टफ होने का बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो okay येस, मेटाबॉलिक रीज़न है कि एक एज के बाद में हमारा मेटाबॉलिज़्म थोड़ा डिप होने लगता है, डेफिनिटली। मसल मास okay डिप होने लगता है, दैट्स आल्सो ट्रू। बट इट डज़ नॉट मीन कि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट बॉडी बिल्डर है, शी इज़ आई थिंक अबाउट 85 नाउ। oh अर्नस्टीन शेपर्ड, शी इज़ द ओल्डेस्ट बॉडी बिल्डर एंड शी इज़ okay 85। Ooh. आप उनके फ़ोटोज़ ज़रूर लगाना इस वीडियो के अंदर। हाँ If you see her, she हाँ is ripped AF and she okay started working out at the age of 56. okay Okay?
सो ये टफ हो सकता है बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से जितने भी ओल्ड लोगों की फ्रैक्चर्स होते हैं या सडन डेथ होती है गिर जाने से, उसका मेजर रीजन है कि उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है। अच्छा। ठीक है, तो गिरने लगे तो कुछ पकड़ नहीं पाए, हाँ। इसलिए गिर गए, फ्रैक्चर हो गया या डेथ हो गई। हाँ। तो अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करते हो तो उसके दो हाँ। फायदे हैं। एक तो आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, आपको हाँ। गिर के फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाएँगे। सेकंड, जब हाँ। आप स्ट्रेंथ पे काम करते हो आपका मसल मास जो है वो बढ़ता है। एंड एट एनी एज ये प्रूव हो चुका है अब, एट एनी एज यू कैन ग्रो योर मसल मास। उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, अच्छा। राइट? स्लो या फास्ट हो सकता है। यंग लोगों के लिए इट्स हाँ। गोइंग टू बी फास्ट, ओल्ड लोगों के लिए इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल स्लोअर। बट हाँ। आप ओल्ड एज में भी मसल गेन कर सकते हो और जब आप मसल गेन करोगे ऑटोमैटिकली आपका फैट लॉस भी होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। ये चीज़ भी एक रिसर्च में फाइंड आउट की गई थी कि एक 65 ईयर ओल्ड मैन जो वर्कआउट कर रहा है पिछले कुछ 1 या 2 साल से वर्सेस अ 30 ईयर ओल्ड मैन हू हैज़ नेवर वर्कड आउट। 65 ईयर ओल्ड वाला आदमी जो है वो 30 ईयर ओल्ड वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो सो वर्कआउट वाओ। करना है। हाँ, 100%. Next myth I want to address कि eating breakfast will only help you lose weight. इंटरनेट पे इतना ज्यादा है कि if you have like good breakfast and you skip the dinner part, only that is the best way to lose weight. मतलब डिनर मत करो, ब्रेकफास्ट हैवी करो, तभी ब्रेकफास्ट लूज होगा। तो घर में ही बोलते हैं, एंड सुनील शेट्टी भी आके बोल दिया, मैं तो बहुत ही हैवी ब्रेकफास्ट करता हूँ और डिनर में स्किप कर देता हूँ, लंच भी हल्का करता हूँ। तो सब लोग है कि अब ब्रेकफास्ट घर में बोल रहे हैवी बनाओ। घर वाले कह रहे अरे भाई सुबह सुबह तो पोहा बनता है, तुमको दाल रोटी चावल नहीं खाना है। Yeah. आई थिंक हर किसी का अपना-अपना एक एजेंडा है और जो चीज़ हाँ। उस एजेंडा को फिट होती है वो फिर वही बोलने लगता है कि यही बेस्ट वे है हाँ। लूज़ करने का। हाँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर सुनील शेट्टी ने ये कहा भी होगा कि ब्रेकफास्ट हैवी और डिनर लाइट, उनका ये हाँ। मतलब नहीं होगा कि ब्रेकफास्ट में पूड़ियाँ और डिनर में सूप। हाँ। राइट? एक बैलेंस हमें सारे ही मील्स में चाहिए, राइट? हाँ। ऑफ कोर्स आपका जो ब्रेकफास्ट है वो डिनर के कंपैरेटिवली हैवी तो होगा ही। हाँ। दैट गोज़ विदाउट सेइंग, है ना? हाँ। क्योंकि जब आप ब्रेकफास्ट करके घर से निकल रहे हो, आपको पूरा दिन अभी काम करना है, राइट? हाँ। सो आपका ब्रेकफास्ट जो है वो डिनर के कंपैरेटिवली तो हेल्दी होना ही चाहिए, राइट? ओके। बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप डिनर खाओगे ही नहीं। अच्छा, लाइट करो। लाइट कर सकते हो और व्हेन आई से लाइट आई डू नॉट मीन कि जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतना मत खाओ। जितनी भूख है अच्छा। उतना तो खाना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर हाँ। रात में जाके आपको भूख लगेगी, ट्रू, ट्रू, ट्रू। राइट? हम्म। सो डिनर लाइट करने का मतलब है कि जितनी आपको भूख है, आप उतना खा लो, लेकिन हाँ। हेल्दी चीज़ें खाओ। ईज़ी टू डाइजेस्ट चीज़ें खाओ। ओके। रात को पूड़ी मत खाओ, दाल-चावल खा लो, हाँ। हाँ। लाइक दैट, राइट? ओके। हल्के डिनर का मतलब ये नहीं होता है कि पानी पी के या सूप पी के सो जाओ। हाँ। ओके। 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 गुड एडवाइस, गुड एडवाइस। नेक्स्ट मिथ, इट्स अबाउट डाइटिशियन कि एनीबॉडी कैन बिकम अ डाइटिशियन। आजकल देखो हर मामा चाचा हर आपको एडवाइस दे रहा है, ये मत खाओ, वो खाओ, ये खाओ, या वो खाओ। कह रहा है मैं तुम्हारा डाइट प्लान बना दे रहा हूँ, रुको इधर आओ, लिख दो 5 चीज, डाइटिशियन बन जाओ। सो लाइक इज इट सो इजी टू बिकम अ डाइटिशियन? यार मुझे 15 साल हो गए हैं, हाँ। 17 साल हो गए हैं पढ़ते हुए। 2007 में शुरू किया था। अगर हाँ। स्कूल वाला 11th-12th काउंट कर लूँ तो हाँ। 19 साल हो गए हैं, हाँ। ठीक है? तो मुझे 19 साल हो गए हैं ह्यूमन बॉडी साइंस पढ़ते हुए। मैं हम्म। ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, मास्टर्स कर चुकी हूँ, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पढ़ चुकी हूँ, आयुर्वेदा डायटीटिक्स पढ़ चुकी हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स कर चुकी हूँ और कुछ बच तो नहीं गया? नहीं, आई थिंक सब हो गया। हाँ। अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ एक अच्छी डायटीशियन बनने की। अच्छा। And like why is it like so hard to become like a good dietitian? Like what do you think is the hardest part of your job? The hardest part is making people understand. Okay. The hardest part is making people understand the value of education. But like you could always say कि यार ये तो इनका problem है if they are not getting educated. मतलब because you yourself is getting educated
and you हाँ, can always हाँ, prescribe ऑफ कोर्स। कि ये कर लो, but if they don't do, you can always say कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम, I get my हाँ, fees. मैं कह सकती हूँ कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, बट इट काइंड ऑफ पर्सनली हर्ट्स मी व्हेन समबडी इज स्टेइंग हंग्री बिकॉज़ ऑफ मिथ्स। हाँ, मुझे दुखता है ओके, जब कोई बोलता है कि मैंने ये खाना छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने एक रील में देखा था। हाँ, हाँ, मुझे बहुत दर्द होता है जब कोई ये बोलता है कि मैं तो वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरा हो ही नहीं रहा है, मैंने हर डाइट ट्राई करके देख लिया है। तो हाँ, बहुत दर्द होता है मुझे। तो हम्म, या okay, got it. You have like a general care nature towards people, so from there this thing आई एम अ comes from पंजाबी, your, आई एम yeah, अ पंजाबी भई, मुझे दिल की खुशी मिलती है लोगों को खाना खाते हुए देख के। हाँ, but अच्छा खाना खाओ, हाँ, yeah, एग्ज़ैक्टली। हाँ. Next thing, next myth. Only two myths are there. Not take much of your time. Morning workout is the best workout. There is like a myth कि जो लोग मॉर्निंग में वर्कआउट कर लेते हैं उनका ज्यादा इफेक्टिव रहता है, शाम को तो थोड़ा 60% ही होता है नहीं, इफेक्टिवनेस. ये सबके लिए अलग-अलग होता है। जिस टाइम पे ओके, आप वर्कआउट कर सकते हो वो बेस्ट टाइम है वर्कआउट करने का। अच्छा, और वर्कआउट सुबह के करो. वर्कआउट या वर्कआउट हाँ, करो, किसी भी टाइम करो, हाँ, डज़न्ट मैटर। सुबह हाँ, वर्कआउट का अलग बेनिफिट है, शाम के वर्कआउट का अलग बेनिफिट है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, सुबह के टाइम में स्पेशली ये लड़कों के लिए वैलिड है। सुबह के हाँ, टाइम में टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका हाई होता है, तो अच्छा, आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी रहेगी। अच्छा, बट एट द ये सेम टाइम साइंटिफिक. या बट एट द सेम टाइम इन द इवनिंग टाइम आप हाँ, जब सुबह वर्कआउट करने जा रहे हो तो आपने कुछ खाया नहीं हुआ है, आपने एक छोटा-सा फ्रूट खाया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, राइट? लेकिन जब आप शाम को वर्कआउट करने जा रहे हो तो आपने पूरा दिन का जो खाना खाया हुआ है, उसकी वजह से आपके मसल में जो ग्लाइकोजन है, वो बढ़ जाएगा और हाँ, उसकी वजह से आप लिफ्टिंग अच्छी कर पाओगे। अच्छा, सो सुबह आपको टेस्टोस्टेरोन का एडवांटेज मिल रहा है, शाम को आपको मसल ग्लाइकोजन का एडवांटेज मिल रहा है। दोनों का अपना-अपना एडवांटेज है, जिस टाइम पे आप वर्कआउट कर सकते हो जाके करो। हाँ. बस करो, रात को मत वर्कआउट करो। करो, हाँ, बस वर्कआउट. रात को मत करो। जो लोग होते हैं अच्छा, ऐसे रात में 10 बजे वर्कआउट करने जा रहे हैं, 2 बजे वर्कआउट करने जा रहे हैं, डोंट डू दैट। अच्छा, सनसेट के बहुत देर बाद एक्टिव मत रहो फिजिकली बहुत ज़्यादा, बट अच्छा, ड्यूरिंग द डे टाइम एनी टाइम वर्क्स। ओके, ओके. या लास्ट में आई वांट टू एड्रेस कि गुड एक्सरसाइज कैन एक्चुअली क्योर बैड हेल्थ, बैड डाइट. नो कि इफ यू आई वर्कआउट मोर, मैं अभी खा लेता हूँ थोड़ा और समोसा, बट मैं जिम में तो यार 10 पुशअप और मार दूंगा. कैन इट रियली डू दैट? ओके, ये वर्क कर सकता है जब आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हाँ, बहुत हेवी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी मिल्खा सिंह का एग्जांपल दिया था। हाँ, मिल्खा सिंह की ट्रेनिंग कैसी थी? अलग तो ही वो लेवल, उठा के वो तो एथलीट हाँ, लेवल है ना, वो तो एग्ज़ैक्टली वो एथलीट देश लेवल में ही ट्रेनिंग 100 लोग कर रहे हैं सिर्फ. एग्ज़ैक्टली राइट। हाँ, और उस टाइम पे मतलब अगर उसने वो एक्चुअली वो पूरा का पूरा बाल्टी उठा के दूध दही पिया हाँ, भी सॉरी हाँ, घी पिया भी होगा, हाँ, उसका चल गया होगा, आपका नहीं हाँ, चलेगा। हाँ, मेरे जैसे लोगों का नहीं चलेगा, हम दोनों का नहीं चलेगा, हाँ, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल ओके, सो एज़ आई सेड मेरे पापा हाँ, almost from a very, very, very young age he was doing exercises, right? And proper अखाड़ा ट्रेनिंग कर रहे थे तो प्रॉपर हाँ, मसल ट्रेनिंग पूरी थी उनकी, राइट? एंड ही यूज्ड टू टेल अस कि एक बार ऐसी शर्त लगी थी और वो शर्त जीतने के लिए 60 केले खा गए थे। 60 गजब. या हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये जो एपेटाइट है ना, हाँ, ये जो मेटाबॉलिज्म है जो कुछ भी झेल जाएगा, वो हाँ, आता है बहुत सालों की ट्रेनिंग के बाद। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि आपने 2 महीने पहले जाके वर्कआउट करना शुरू किया और हाँ, आपके जिम के नीचे स्टारबक्स है। आप हाँ, जिम गए, नीचे गए फिर कैपुचिनो, फ्रापेचिनो हाँ, व्हाटएवर वो आपने हाँ, पी ली जाके और आपको कुछ हाँ, नहीं होगा क्योंकि आपने तो वेट ट्रेनिंग नो, ऐसा नहीं होता, हाँ, हाँ, राइट? इनफैक्ट अ, अगर आप रॉक के कोई वीडियोज़ देखो, ड्वेन जॉनसन, राइट? हाँ, इफ ही लुक एट हिज़ इफ यू लुक एट हिज़ चीट मील वाला डे, हाँ, द काइंड ऑफ फूड दैट ही ईट्स, हाँ, हम सोच भी नहीं सकते उतना खाने का। राइट? हाँ, लेकिन उसके पास वो एपेटाइट और उसकी बॉडी वो झेल जाए उस चीज़ की कैपेसिटी हाँ. 40 साल के वर्कआउट से आई है। उसका बॉडी भी तो वैसा है, दिख भी तो रहा है, एग्ज़ैक्टली, इतना बिल्ट अप आदमी एग्ज़ैक्टली, है.
हाँ वो अपनी बॉडी के ऊपर 40 साल से काम कर रहा है, हाँ राइट? हाँ तो आप मतलब हमारे जैसे छोटे-मोटे हाँ चुन्नू-पुन्नू हम नहीं हाँ अपने आप को कंपेयर कर सकते उस चीज़ से, और हम ये नहीं बोल सकते कि अरे हम तो जो मर्ज़ी करेंगे और एक एक्सरसाइज़ हाँ फालतू कर लेंगे, नो, ऐसा नहीं हाँ होता। आप हाँ कभी भी एक हाँ अ, एक खराब डाइट से एक अच्छे हाँ वर्कआउट को कंपेंसेट नहीं कर सकते हो, ओके राइट? और जब एकदम आप खराब डाइट भी बोलते हो, अगर आप एकदम निरा गंद खाना चाहते हो, हाँ छोले-भटूरे, वो सड़े हुए हाँ तेल में बने हुए छोले-भटूरे हाँ आप खाना हाँ चाहते हो हाँ और आप चाहते हो कि आप वो खाओ और आपको कोई फ़र्क ना पड़े, so हाँ that will have to be like you will have to reach a point where you are working out for like 6 months, 7 months, 8 months, हाँ and then maybe once or twice you are having that. once or twice every day or No, once or every twice month. in that 6 months period. Okay, 6 months में once or twice. Oh my Yeah, God. ठीक है? Oh, However, there हाँ comes a point जब आप हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली ट्रेन कर रहे हो, बहुत हेवी ट्रेन कर रहे हो, हाँ राइट? जब आप अपना बॉडी वेट तो एटलीस्ट उठा ही रहे हो अपने स्क्वाट्स हाँ में, डेडलिफ्ट हाँ में आप अपनी बॉडी वेट का डबल उठा रहे हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ अगर आपने किसी अच्छे बिल्ट अप आदमी को देखा हो, हाँ कोई ट्रेनर को देखा हो या बॉडी बॉडी वॉडी बना के जो बंदा घूम रहा हो, उसको देखा हो, उसकी एपेटाइट भी बहुत ज़्यादा होती हाँ हाँ है ना? उसकी एपेटाइट ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर मसल मास ज़्यादा है, हाँ राइट? अच्छा तो जब आपका मसल मास आप बढ़ा लेते हो, तो आपका एपेटाइट भी बढ़ जाता है और आपकी बॉडी का टेंडेंसी टू डाइजेस्ट क्रैप भी बढ़ जाता है। हाँ हाउएवर एट द सेम टाइम जब आप उस स्टेज पे पहुँच जाते हो, तो क्रैप हाँ खाने का मन आपका कम करता है, बिकॉज़ यू हाँ रिस्पेक्ट बिकॉज योर बॉडी इतनी मच मोर। इतनी या यू रिस्पेक्ट इतनी मेहनत जो आपने कर ली है अब आप समझते हो कि मैं 10 दिन कुछ घटिया खा के वो सब खत्म नहीं करना चाहता नहीं करोगे आप। हाँ एग्ज़ैक्टली। ट्रू सो ये वाला जो माइंडसेट है ना कि हाँ अरे मैं एक एक्सरसाइज़ फालतू कर लूँगी और मैं ये गंद खा लेती हूँ कुछ तो। हाँ This comes from a very this comes from a mindset where you are seeing a transaction in every workout. हाँ When you are seeing a give and take in every workout. मैंने इतनी कैलोरी बर्न करी तो मैं इतनी खा सकती हूँ। But हाँ our body is way beyond that, हम्म right? जब आप अपनी बॉडी का वो ब्यूटी देखने लगते हो कि जब आप हम्म वर्कआउट कर रहे हो, जब आप अच्छा खाना खा रहे हो, तो क्या-क्या चीज़ें बदल रही हैं आपके अंदर, हाँ राइट? लोगों की शक्लें बदल जाती हैं वर्कआउट 100% के तो बाद, मैंने खुद देखा है मेरी तो नहीं बदली राइट? लोगों की तो काफी बदली है या Right? You get हाँ more, you feel, you look, and people perceive you as more attractive हाँ when you're working out. आपका स्किन बेटर हो रहा है, आपके बाल बेटर हो रहे हैं, आपके मेडिकल इश्यूज कम हो रहे हैं, आपका डाइजेशन बेटर हो रहा है, आपका स्लीप क्वालिटी बेटर हो रहा है, आपका हाँ मूड बेटर हो रहा है, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं। जब ये सारी हाँ चीजें आप देखते हो ना, तब आप वो वर्कआउट को ट्रांजैक्शन की तरह देखना बंद कर देते हो। हाँ बिकॉज वो एक जगह बेनिफिट नहीं कर रहा है वो तो आपकी लाइफ में हर जगह बेनिफिट कर रहा है एंड इट या इज वाइस वर्सा आल्सो। जब हाँ आप वर्कआउट को ट्रांजैक्शन की तरह देखना बंद कर देते हो एंड यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग प्रॉपर वर्कआउट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट, तब आपको वो बेनिफिट्स मिलने शुरू होते हैं। बट जब तक आप यही सोचते रहोगे कि अच्छा इतनी कैलोरी बर्न कर दी तो अब मैं इतनी खा सकती हूँ और मेरा इतना वेट लॉस हो जाएगा, जब तक आप इस कैलकुलेशन में फंसे रहोगे, तब तक वर्कआउट का जो रियल मजा है वो आप ले ही नहीं पाओगे। हाँ amazing that's a really good answer I would say like last point was like hit the nail on the spot so uh, so from this point we'll be ending the podcast uh, I've taken more than 1 hour of your time it's been like I a didn't very realize it. yeah it's been like very amazing podcast with you like I learned so many new things in the podcast and like from your YouTube videos I learned like so many new things from your Instagram so you keep on making new reels and keep on learning and Thank like we talked about like, so many different aspects like myths and all and your journey and your like food technology to mujhe I really know didn't know first time you. aisa sab hota hai duniya mein so like amazing so really thank you for being like such a kind guest. Thank you so much, Yash, for having me. I love the conversation. Seriously. Yeah. So hope to see you again on the podcast. And Absolutely. like people on the channel being curious with Yash would love to see you again. I would love to And be here. keep making videos. Like it's, it's truly educational. Oh, thank you so much, Yash.
Yeah. Thank you.